so beautiful and it's so awesome to see different places. And I भगवान का हैंडपंप है, पी लो गुरु. हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रॉम माय न्यू डे फ्रॉम कांडस्टैग. सो आज सुबह हम उठे, ब्रेकफास्ट कर लिया अपने एयरबीएनबी में और बहुत सुंदर जगह है ये. देखो, ये बालकनी से व्यू है. दिस इज़ अ व्यू फ्रॉम माय बालकनी. इट्स ब्यूटिफुल. नाउ आई एम गोना शो यू माय एयरबीएनबी वेयर आई एम स्टेइंग. वन सेकेंड. So this is the balcony, as you know that, and this is the open kitchen, hall with a big TV. It's a good enough size TV though. It's very nice. And now this is the passage to walk. ये हमारा पहला रूम है. और ये इस वाले रूम से ये व्यू है. व्यू देखो भाई, ओह वाह, ब्यूटीफुल. अब दूसरे रूम का व्यू तो इतना अमेजिंग है ना. ये दूसरा रूम है, ये उसकी एंट्री है. और ये व्यू देखो, ओह माय गॉड. और वो क्या है देखो हमारे यहाँ से, ये स्विस एल्प्स हैं जो कि हमारी विंडो से दिखते हैं. सो भाई बाहर आ गए अपने एयरबीएनबी से और अब जा रहे हैं. एक ब्यूटीफुल लेक है स्विट्ज़रलैंड में जिसका नाम है लेक ओस्टेनेंसी. इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत हार्ड है, मैंने अभी गूगल पे चेक किया है. लेक ओस्टेनेंसी जो उधर है ऊपर, उधर ऊपर. सो लगभग 2 घंटे का ट्रैक है यहाँ से जहाँ पे हम रुके कांडस्टैग में. भाई ये व्यू देखो, ये स्विस हाउसेस हैं. दीज आर अराउंड 200 ईयर्स ओल्ड. ये है भाई ऑफिस गंडोला का. यहाँ से गंडोला की टिकट बाय कर सकते हो. और ये हैं गंडोलाज जो ऊपर जाएंगे इधर. और टिकट है 3600 की आने जाने की. तो एक तरफ का भी बाय कर सकते हो, दोनों तरफ का भी. कुछ लोग जाते ट्रैक करके हैं और आते गंडोला से हैं. इस व्यू के साथ 2 घंटे ट्रैक मज़ा ही आ जाएगा. स्विट्ज़रलैंड इज़ अ हेवन ऑफ द वर्ल्ड यार. इट्स ब्यूटीफुल. लेट्स गो. तो ये मैप है भाई लेक ओशनेंसी का. इसके 2-3 रास्ते हैं. एक रोड से जाता है, एक उधर जंगल से, और कुछ लोग तो यहाँ पीक तक जाते हैं. तो फौजी जा रहे हैं हम. बिल्कुल पीक पे जा रहे हैं कि चलो भाई. भाई ये है जिंदगी. देखो ये देखो, कुदरत का पानी आ रहा है बढ़िया. आ हा हा, मुँह धुलो. वाह, और फ्रेश पानी ऊपर से. हमें भगवान का हैंडपंप है, पी लो गुरु. इंसान का हैंडपंप नहीं है. One of the most important reason was Gemini Pass, which connect Kandastek to a Valais region. Hundreds of years, traders and travelers used to cross the path to carrying the salt, cheese, and wine between the valleys, which make a mid part of the Kandastek for North and South Switzerland. लगभग 1 घंटा ट्रैक कर लिया है भाई और हालत ख़राब हो गई है. थकी हो गई, मेरे नहीं. सब ऐसे ही कहते हैं भाई. व्यू देखो, व्यू. और ये इधर बर्फ के पहाड़. कुदरत का पानी आ रहा है ऊपर से, सीधे पी लेते हैं. पी ले ओ मोरे राजा, पी ले ओ मोरे जानी. So hello, so I was trekking and I just trekked 1 hour and I met these beautiful girls in between. Hi, I'm Anand from India. Where are you from? I'm Catherine and I'm from Germany. And you? I'm Laura. I'm also from Germany. Which part of Germany you guys are from? From the south, from Konstanz. Ah, okay. So, as I'm from India and I'm in India, people
don't travel a lot much. So if I want to ask you, what is the three bigger benefit and the importance of the traveling in life, you say? I would say it's awesome to see new places because the world is so beautiful and it's so awesome to see different places. And I'd say it really opens up your horizon so you can experience how others live and what kind of lifestyle I have, and then you can think about how you want to live and probably change it. And to you, what is the benefit when you meet new people? Like when you live in the same house or same places for a longer time, you sometimes stuck and get stressed. But what when you travel and when you leave your house, go to the new places, see this beautiful nature, what it teaches you? I think it widens my horizon because I can see how different my life could be if I would live in a different country, and also like the people I meet on the way, I learn something from them like all the time, and yeah. Why not you guys thought to save money and buy a expensive car and a house? I think it's a good boring. balance. Yes, yeah. See, this is the thing, when you travel, right? Every day you're seeing something new, but you buy a new car, you'll be bored for that car after 1 month or 1 year, maybe. Yeah, yeah, true. But this beauty, you walk 1 kilometer, there's different beauty every time. So if you have two choices to get a big penthouse in Manhattan or travel the world for free of charge for whole life, what are you gonna do? The second. For sure. So, look, all the Indians should travel now. Save money is good to live life, but always save money and never leave your country. It's too bad. Thank you. I agree. लगभग 1.25 घंटे ट्रैक करने के बाद इस व्यू में पहुंच गए. बस यहाँ से 10 मिनट दूर है ओशनीज लेक. इज़ ब्यूटीफुल. भाई ये है ट्रैवलिंग का बेनिफिट. यस, पैसे सेव करो बट घूमो भी. घूमने से बहुत कुछ मिलता है भाई सीखने को. भाई ज़िंदगी है, जीने के लिए मिली है, तो जियो. ये ट्रैकिंग का रास्ता है. कुछ जगहों पे रोड बनी है, कुछ जगहों पे थोड़ा सा अनइवन है, बट हाँ, इट्स इजी ट्रैक. यू कैन गो विद योर फैमिली, विद योर मॉम एंड डैड, इवन अ ग्रैंड मॉम ऑल्सो. इट्स वेरी इजी. तो भाई फाइनली 2 घंटे ट्रैक करने के बाद लेक ओशनिंसी कांडास्टैग में पहुंच गए. भाई वो कहते हैं ना, मरने से पहले कौन सी जगह देखना पसंद करोगे. ये है भाई वो जगह. वाह भाई वाह. भाई इस धरती पे अगर जन्नत कहीं है तो वो यहाँ है. और भाई एक और बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन कि ये जो ट्रैक है ना 2 घंटे का, इसके 2 रास्ते हैं. 2 से 3 रास्ते हैं. एक 1 घंटे का है, एक 1.25 घंटे का और एक 3 घंटे का है. 3 घंटे वाला क्या है, वो जंगल से है. जो यंग लोग हैं, जो ट्रैकिंग फ्रीक हैं, वो जंगल से भी आ सकते हैं और प्रॉपर वाइल्ड लाइफ का मज़ा लेते हुए. और एक है जो कि नॉर्मल है, जो कि 1 घंटे का है. वो बाय रोड है और थोड़ा स्टीप है. और काफ़ी लोग हैं जो यहाँ पे 70-80 साल के हैं, वो भी ट्रैक करके आए हुए हैं. सो इट्स ईजी. सो अपनी फैमिली के साथ भी आ सकते हो, मॉम डैड के साथ भी आ सकते हो, ग्रैंड मॉम के साथ भी आ सकते हो. सो इतना टफ ट्रैक नहीं है. अच्छी बात ये है. सो एवरीबडी कैन एन्जॉय दिस. दूसरी चीज़, ये जो मेरे पीछे रेस्टोरेंट है, ये रेस्टोरेंट महंगा है काफ़ी. तो अगर आपको पैसे सेव करने हैं तो नीचे से आप अपना खाना लेके आओ. सुपरमार्केट जाओ, जूस, वाटर, केला और एनी काइंड ऑफ फ्रूट्स, चीज़ नीचे से लेके आओ, बैग में लेके आओ, जैसे यहाँ सब लेके आते हैं, और उसको यूज़ करो. यहाँ पे लगभग गर्म पानी, 1 गिलास गर्म पानी 200 रुपये का है. एक कॉफ़ी 550 रुपये की है. एक गिलास बियर 700 रुपये की है. और एक पिज़्ज़ा अराउंड 1500 से 1800 रुपये का है. सो यहाँ महंगा है ऊपर, क्योंकि मज़ा लो इस ज़िंदगी का इस वादियों के साथ. और एक बात और, अब थोड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पहुँचे कैसे. सो ये ज्यूरिख से लगभग 2-2.5 घंटे की ड्राइव की दूरी पे कार है, तो 2.5 घंटे ड्राइव करके आ सकते हो. और अगर आप ज्यूरिख से ट्रेन से आना चाहते हो तो ट्रेन चलती हैं. एक ऐप है जिसका नाम है SBB ऐप. उस ऐप को डाउनलोड करो, उससे ट्रेन बुक करो. जो ट्रेन लेती है अराउंड 40 फ्रैंक्स, 4,000-4,500 रुपये की टिकट है. 2 घंटे में ट्रेन आपको यहाँ पहुँचा देगी. और नाउ व्हेन इट कम्स टू वेयर टू स्टे, सो एक अच्छी बात नहीं है जो कि यहाँ पे हॉस्टल्स नहीं है कांडास्टैग में. बेसिकली ज्यूरिख में है, ज्यूरिख में हॉस्टल्स हैं बिल्कुल, जो कि आपको 5-6 हज़ार रुपये पर नाइट पे हॉस्टल, और होटल लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये पर नाइट पे मिलेंगे. बट हॉस्टल नहीं है.
और कांडा स्टैग में हॉस्टल नहीं है, कांडा स्टैग में आपके पास होटल है। होटल 15 से 20 हज़ार पर नाइट। एक चीप ऑप्शन है जो कि थोड़ी अच्छी बात है, वो है एयरबीएनबी। आप एयरबीएनबी ले सकते हो। एयरबीएनबी अराउंड मिल जाएगा आपको थोड़ा कांडा स्टैग से दूर, जो कि 15-20 मिनट दूर है यहाँ से। 7,000 रुपये पर नाइट, 6,000 रुपये पर नाइट। और बिल्कुल सेंटर कांडा स्टैग में जहाँ से ये ट्रैक शुरू होता है वहाँ पे आपको मिलेगा लगभग 15,000 रुपये से लेके 20,000 रुपये पर नाइट का 2 लोगों के लिए। अगर एक लोग हो तो अराउंड 10 से 12,000 पर नाइट पे एयरबीएनबी मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। और ये बहुत खूबसूरत है भाई। लोग यहाँ पे यही करते हैं, ये इनकी वीकेंड एक्टिविटी और एवरी डे। और अब बाकी मैंने जैसा तुमने अभी देखा, मैंने 2 लड़कियों को शूट किया जो कि जर्मनी से आई हैं, स्टडी कर रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं। और पढ़ाई के साथ साथ वो घूम भी रही हैं। अभी उनका सेमेस्टर ऑफ है तो वो चिल कर रही हैं, वो यहाँ पे 1 हफ़्ता घूमने आई हैं। सो यहाँ पे ना लोग बेसिकली फैमिली पे डिपेंड नहीं होते हैं। 16 साल की उम्र के बाद ही वो अपना पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, साथ ही साथ अपना ट्रैवल भी करते हैं। बिकॉज व्हाट ट्रैवलिंग टीचेस यू, इट मेक यू मीट सो मैनी पीपल, हॉराइजन। अब कानपुर की भाषा में भाई, अबे कब तक फंसे रहोगे भाई? गाड़ी घोड़ा घर बीवी बच्चे सब कुछ ज़रूरी है, मगर ज़िंदगी मिली है तुम्हें खुद जीने के लिए। खुद नहीं जियोगे दूसरों के लिए कब तक जीते रहोगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी करो, बड़े भाई घूमो भी, मज़े हैं जीवन के तभी। तो भाई पहुंचने के बाद सबसे पहली चीज़ जो खा रहे हैं वो ये है, ये राइस केक है जो कि चावल से बना हुआ है। इसमें लगाई है क्रीम, जो कि फिलाडेल्फिया क्रीम होती है, और चीज़, कैमेम्बर्ट चीज़। तो इस तरह खाना खाते हैं भाई यहाँ के लोग। चीज़, राइस केक, चीज़ बहुत खाते हैं। चीज़ का बहुत चलन है क्योंकि स्विस चीज़ पूरी दुनिया में फेमस है। तो अगर आओ तो भाई स्विस चीज़ ज़रूर ट्राई करो। तो मेरे कानपुर के दोस्तों, यहाँ आओ पुड़िया खाओ। यहाँ केवल पुड़िया से काम नहीं चलेगा गुरु, ज़िंदगी जियो यार, मज़े लो, क्या दिक्कत है सब। क्योंकि मुझसे लोग हमेशा कहते हैं अबे तुम कैसे करते हो, इतना कैसे घूमते हो? क्योंकि लोगों को घूमना लगता है कि पैसा ख़राब है। पैसा ख़राब नहीं है घूमना भाई, घूमना ही ज़िंदगी है। ज़िंदगी मिल ही इसलिए है, जीने के लिए, घूमने के लिए। पैसा कभी कम नहीं पड़ता किसी के पास, सब कुछ सोच का है भाई। जैसा सोचोगे वैसा मिलेगा। तो भाई ये है इनकी टोब्लरोन स्विस चॉकलेट, ये बर्गर हैं। ये देखो, ये एक एप्पल स्ट्रूडल है जो कि 7.5 फ्रैंक्स का है, 750 रुपये का। ये सैंडविच है 500 रुपये की। ये हैं भाई स्विस फ्रैंक्स, दिखाओ। ये देखो भाई, ये 2 फ्रैंक हैं, ये 220 रुपये भाई, 2 रुपये नहीं है। थैंक यू। कि सब कहते हैं ना कि अब्रॉड में घूमना महंगा है, बहुत मुश्किल है। महंगा मुश्किल कुछ नहीं है, सब सोच का है, सब तुम्हारी सोच का है। क्योंकि आप इंडिया में भी घूमते हो, इंडिया में भी आप नैनीताल, देहरादून, ऋषिकेश, वृंदावन जाते हो। सो वहाँ भी है और यहाँ भी है। अब आप इंडिया से, मैं बताता हूँ इंडिया से क्या खर्चा आता है। सो इंडिया से जब तुम आओगे तो अराउंड दिल्ली से स्विट्ज़रलैंड की टिकट तुम्हें पड़ेगी, रिटर्न टिकट आने जाने की फ़्लाइट की। सही टाइम पे बुक करोगे तो 60 हज़ार की एक आदमी की, ठीक है। उसके बाद यहाँ आके 10,000 रुपये पर डे रहना, तो 3 दिन का 30-40 हज़ार रुपये मान लो। एक दिन में तुम 7-8 हज़ार में अच्छा खाना खा लोगे, तो लगभग तुम मान लो 5 दिन में 30 हज़ार के साथ आसपास वो हो गया, ठीक है। 30 हज़ार खाना हो गया तुम्हारा, और 5 दिन में तुम्हारा कम से कम 40 हज़ार का रहना हो, 50 हज़ार का रहना हो गया। तो 50 और 40, 90 और 60, 6-4-10, 1,10,000 रुपये हुए। 1,10,000 रुपये में तुम 5 दिन स्विट्ज़रलैंड ऐसी जगह में घूम सकते हो, रह सकते हो, मज़े ले सकते हो। और दूसरा बेनिफिट ये है, जब इंडिया के बाहर आते हो तो तुम्हें और चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी, ना कि जस्ट घूमना। लोग यहाँ कैसे रहते हैं, लाइफ में केवल पैसे कमाना और मकान खरीदना ही लाइफ नहीं है। घूमना, एवरी डे आप बूढ़े हो रहे हो, एक एज के बाद अब ये सब चीज़ें नहीं देख पाओगे। आज आप खुली हवा में सांस ले रहे हो, आपकी ब्रीदिंग ठीक है, बीपी ठीक है, शुगर ठीक है, एंजॉय करो यार। जब ऐसी जगह में आते हो तुम खुश रहते हो, और जब खुश रहते हो तो तुम्हारी लाइफ और बढ़ जाती है। तो फिर जब तुम वापस इंडिया जाते हो ना, तुम्हारा दिमाग ज़्यादा काम करता है, तो तुम अच्छा काम करते हो।
सो 1.25 लाख रुपये में, 1,20,000 रुपये में, 1,25,000 रुपये में आप एक हफ्ते की ट्रिप कर सकते हो, एक हफ्ते की स्विट्ज़रलैंड, जो कि वन ऑफ द एक्सपेंसिव कंट्री इन द वर्ल्ड है। ये बोट भी हायर कर सकते हो भाई पूरी लेक में चलाने के लिए, बट मैक्सिमम 4 लोग जा सकते हैं उस बोट में। ये रहा भाई 36 फ्रैंक्स की लगभग 4,000 रुपये इंडियन रुपीज़ में एक बोट हायर कर सकते हो 1 घंटे के लिए। मैक्सिमम 4 लोग जा सकते हैं उस बोट पे। और अच्छी चीज़ है उसमें, एक बियर भी फ्री मिलेगी चारों लोगों को, अगर जो पीता है। जो नहीं पीता है अपने शरबत का जुगाड़ खुद करो, यहाँ नहीं मिलेगा। तो भाई मेरा कनपुरिया और भाई का जाट जाग गया है, तो हम जा रहे हैं इस -4 डिग्री पानी में डुबकी लेने। आहा चलो भाई इस पानी में जा रहे हैं डुबकी लगाने। ये गड़ैया गंगा में डुबकी की आदत है ना। बहुत ठंडा है भाई, हट गई भाई, मज़ा आ गई। बहुत ठंडा था भाई, क्योंकि बर्फ़ से पानी आ रहा है। ये है भाई ये टैक्सी जो कि गंडोला के स्टेशन तक पहुंचाएगी। कितने में है भाई? 10 फ्रैंक्स में। और भाई एक सवाल मुझसे सब पूछते हैं कि स्विट्ज़रलैंड या यूरोप इतना क्लीन कैसे है? भाई इतना क्लीन इसलिए है कि ये मेरे आगे ये देखो वो 4 लोग जा रहे हैं, उनके पास कुत्ता है, सो उनके कुत्ते ने अभी ना शिट कर दी जंगल में। तो भाई उन्होंने उस शिट को छोड़ा नहीं, उनके पास एक पॉली बैग होता है, उस पॉली बैग से उस शिट को उठाया इस जंगल में भी, और डस्टबिन का वेट करेंगे, उस डस्टबिन में डालेंगे। सो भाई अपनी कंट्री को ये खुद क्लीन करते हैं। कोई भी कंट्री हर टाइम हर जगह पुलिस सिक्योरिटी और पेनल्टी के थ्रू क्लीन नहीं हो सकती है। आपको खुद अवेयर रहना पड़ेगा, खुद सिविक सेंस की अवेयरनेस होनी पड़ेगी, तभी आप अपनी कंट्री को क्लीन कर सकते हो। सो ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, वी हैव टू लर्न फ्रॉम दिस। सो भाई दैट्स इट फॉर द डे। आज के दिन का यहीं समाप्ति करते हैं। अब जा रहे हैं नीचे वॉक करके, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। उसके बाद सुपरमार्केट से कुछ ख़रीद के अपना कुक करेंगे और सो जाएंगे।